Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In recent class, we have studied vocabulary class like name of days, name of months. We have studied, and after that, we have studied name of colors and their types, like primary colors and secondary colors in drawing also and in science also. And before that vocabulary class, we have studied a grammar called future perfect tense. It means when we will see in future, the work will have finished. Work will have finished at that time when we will see in the future. And now we are going to take another grammar that is in present. That is in present. If we will talk about present, present, and the work is going on. We have studied already in present when the work is going on. Continue. Work is going on in present. We have studied, but if starting time of the work, starting time of the work, starting time of the work, of the work will be given, then that grammar will change. That grammar will change. That will be another grammar. If the work starting time of the work will be given, that grammar will change totally. That will not be a present continuous. That will be another grammar. Then we will use another structure for that. Subject means doer, the person who will do the work, that is subject. After that, has or have, has or have been, has and have been, plus ing form of the verb. Why use ing form? When the continuity of the work is shown. Continuous work is going on. That's why we are using ing form of the verb. After that, object. Other things that has been mentioned in the sentences that will be used here at the place of object. After that, I have said the starting time of the work will be given. Starting time of the work will be given. That time will also be mentioned here, time. But before time, we will use a magical word, a word that is called since or for. Either since or for. We can use one out of both, since or for. अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, ठीक है, when the work is going on in present, सबसे पहले हमने इसी ग्रामर को सीखा था. when the work is going on in present, उसको हमने बाद में क्या नाम दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो अगर काम चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस. और ये बताइए, हैज और हैव हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले से. हैज और हैव हमने पढ़ लिया है. इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, इसमें लगाते हैं परफेक्ट में. परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है ना. तो यहाँ पर हमने हैज और हैव लगा दिया, इसलिए हमने यहाँ पर परफेक्ट लगा दिया. और काम चल रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं. इसलिए हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस लगा दिया. वर्क की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम, ठीक है, जब काम चल रहा हो तो. और बात प्रेजेंट की हो रही है इसलिए प्रेजेंट लगा दिया हमने. तो इस पूरे सेंटेंस, इस फॉर्मेट के जो सेंटेंस बनेंगे उसको क्या नाम देंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बात समझ में आई, नाम क्यों पड़ा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, चलिए. अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज समझने वाली है. समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पर हमने टाइम जो लिखा हुआ है सेंटेंस में, यहाँ पर जो टाइम हमने लगाया हुआ है, इस टाइम के पहले दो वर्ड्स हमने लगाए हुए हैं, सिंस और फॉर. ये क्या चीज है, सिंस और फॉर, ये क्या चीज है. चलिए अब देखते हैं हम सिंस और फॉर के बारे में. ये जो टाइम है हमारा दो तरीके का हो सकता है. जो भी टाइम हमारा यहाँ पर दिया रहेगा, काम शुरू होने का जो टाइम दिया रहेगा वो दो तरीके का हो सकता है. या तो फिर हमारा
पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, काउंटिंग ऑफ टाइम, ऐसा टाइम दिया हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग ऑफ टाइम, या उस टाइम में आपका नंबर आया हो, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। और दूसरा आपके क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम एकदम, पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम, या फिक्स टाइम कुछ लोग इसको बोलते हैं, फिक्स टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल में टाइम क्या हो सकता है, अगर मैं सेंटेंस बोलूं, इसका पहले एक सेंटेंस दो चार बोल करके मैं दिखाता हूँ। पिताजी सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, पिताजी इंतजार कर रहे हैं सुबह से, सुबह से पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, यानी किसी में आएगा काम शुरू होने का टाइम दिया गया है सुबह से, और उस काम की कंटिन्यूटी दिखाई है, ठीक है, प्रेजेंट में। ये फोन लगा लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से टाइम सुबह से। अब देखिए काम से कंटिन्यू हो रहा है, सेंटेंस में मुन्ना 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, माँ 2 दिन से कुछ खाई नहीं है, पिताजी आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, काम कंटिन्यू भी दिख रहा है और उस काम के शुरू होने का वक्त भी दिया गया है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इसमें बताएंगे। तो जो टाइम हमारा मिल रहा है काम शुरू होने का वक्त कैसे हो सकता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, 10 दिन से, 2 साल से, 5 घंटे से, या फिर जो है जनवरी से, फरवरी से, मंडे से, कल से, आज से, परसों से ना, इस तरीके के टाइम आपको मिल सकते हैं। तो टाइम जो है एक तो हमारा काउंटिंग वाला हो गया, जैसे काउंटिंग वाला टाइम जैसे आपका 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डेज, 1 से 2 वीक, 2 वीक यानी सप्ताह, सप्ताह, 2 ईयर, 2 मंथ्स में लीजिए, 3 ईयर, 3 ईयर, 10 मिनट, 6 आवर्स, 20 सेकेंड, 5 विकेट, विकेट में दशक यानी 10 साल, 10 सेंचुरी, शतक, यानी कि जिसमें 1 2 3 4 ऐसी गिनती है जिनको एक फिक्स टाइम के बाद उनका नंबर बढ़ता जाए, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसको काउंटिंग ऑफ टाइम हो रहा है हमारा, ठीक है, काउंट कर रहे हैं इसको, 2 वीक, 5 वीक, 10 वीक, ये काउंट हो रहा है आपका, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 10 साल, 5 साल, 12 साल, 10 मिनट, 15 मिनट, 6 घंटे, 20 सेकंड, ना ये सारी पांच पांच डिकेट्स, 5 डिकेट्स, 10 डिकेट्स, 12 डिकेट्स, तो इन सबको हम काउंट कर रहे हैं। तो काउंट करने वाले जो होते हैं वो आपका पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स टाइम के बाद उनकी नंबर बढ़ जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम, जैसे नेम ऑफ डेज, मंडे है तो मंडे ही रहेगा, मंडे,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो कुछ भी है आपका इसमें हो जाएगा। जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च जो भी आएगा सब इसमें हो जाएगा। नेम ऑफ मंथ, नेम होगा जिसका वो आपका इसमें हो जाएगा। 2024, 2030, 1947, 1950, ये सब के सब आपके फिक्स हैं, चेंज नहीं होने हैं। मॉर्निंग, नेम ऑफ टाइम, ये वक्त का नाम है, ठीक है, वक्त की काउंटिंग नहीं है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, टुडे, टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग थोड़ा गौर कीजिएगा, एम सिंगल होता है, आर डबल होता है, ठीक है। टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, आने वाला कल टुमारो, और द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, आने वाले कल के बाद वाला दिन, द डे आफ्टर टुमारो। और यस्टरडे यानी कि परसों, और परसों के बीता हुआ परसों, और परसों के कल बीता हुआ कल। यस्टरडे बीता हुआ कल, और बीते हुए कल के एक दिन पहले यानी बीता हुआ परसों। तो ये सब आपके फिक्स होते हैं, सुबह दोपहर शाम ये सब फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक सुबह दो सुबह तीन सुबह ऐसे हम गिनते नहीं है इनको, ठीक है। इसलिए आपका इधर ये पॉइंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम या फिक्स टाइम ये पाए जाते हैं, उनको पीरियड ऑफ टाइम, काउंटिंग ऑफ टाइम या नंबर ऑफ टाइम कहा जाता है। तो इनके लिए हमारा जो होता है, इनके लिए हम लगाते हैं सिंस, यानी कि काम शुरू होने का वक्त जब इनमें से कोई भी आएगा तब हम इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। और जब काम पूरा होने का वक्त इनमें से कोई भी आएगा तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। इनके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, समझ में आया, सिंस इनके लिए और फॉर उनके लिए। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पिताजी, पिताजी सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमने इसके पहले जितने भी फॉर्मेट में लिखवाता हूँ तो उसमें क्या थे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी मैंने बता दिया है, कई बार बताया है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज का आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें मना करना हो, नेगेटिव बनाना हो तो हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनाना हो तो हैज ये उठा करके हम आगे ला करके रखेंगे, हमारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसका भी बनाते हैं। पिताजी सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी कर रहे हैं, ठीक है। और काम शुरू होने का वक्त दिया गया, कंटिन्यू है, वो काम कर रहे हैं, और काम शुरू होने का टाइम दिया गया यानी सुबह से कर रहे हैं। तो ये आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। पिताजी क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, पिताजी है, तो सब्जेक्ट आपका फादर हो जाएगा।
फादर, नेम ऑफ रिलेशन, नेम आया, नेम के साथ क्या आएगा, हैज। ठीक है, हैज में से कौन सा आएगा, हैज आएगा, हैज। साथ में क्या आएगा, बीन, हैज बीन। काम जो कर रहे हैं उसका आईएनजी फॉर्म, यानी काम यानी कि वर्क। काम क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं क्या बोलते हैं, वेट, WAI, आईएनजी फॉर्म, वेटिंग, यू, फादर हैज बीन वेटिंग यू। अब क्या, सुबह से टाइम दिया हुआ है, तो सुबह के लिए तो मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में सुबह। अब टाइम के पहले हमने सिंस या फॉर लगाने के लिए बोला, तो मॉर्निंग कहाँ पे आ रहा है, इसमें या इसमें, इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टाइम का नाम है, सुबह के टाइम को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। तो टाइम का नाम है, नेम ऑफ टाइम क्या लगेगा, सिंस लगेगा हमारा। ठीक है, चलिए सिंस, सिंस, ये हमारा सेंटेंस हो गया, फादर हैज बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, पिताजी आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं। माँ कल शाम से कुछ नहीं खा रही हैं, कुछ नहीं खा रही हैं। माँ कल शाम से कुछ नहीं खा रही हैं। काम करने वाला कौन है, माँ, मदर। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव बीन लगना है। तो मदर क्या है, नेम ऑफ रिलेशन, नेम है रिलेशन का, रिश्ते का नाम है, तो हैज आएगा, मदर हैज। मना कर रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, तो नॉट, हैज के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट बीन, खाने को टेक, तो आईएनजी फॉर्म टेकिंग, काम क्या कर रहे हैं, खाने का, तो टेक, आईएनजी फॉर्म टेकिंग। मदर हैज नॉट बीन टेकिंग फूड, शाम से खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, शाम से। सिंस, क्यों, इवनिंग, इवनिंग आपका नाम है, वक्त का नाम है, शाम के टाइम का नाम क्या बोलते हैं, इवनिंग, तो टाइम ऑफ, नेम ऑफ टाइम, फिर सिक्स ये लग गया हमारा, नाइट, लास्ट नाइट, कल रात, सिंस लास्ट नाइट। क्या, वे 5 साल से, क्या वे 5 साल से शहर में रह रहे हैं, क्या वे 5 साल से शहर में रह रहे हैं, वे, यानी कि देन इज वे के साथ क्या लगेगा, हैव, हैव दे बीन। अब देखिए यही चीज हम उठा करके आगे ले आएंगे, हैव दे बीन लिविंग, हैव दे लिविंग इन द सिटी, 5 साल से, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इससे नीचे आएगा फॉर 5 ईयर,
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हैव दे बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 years, क्या वो 5 साल से शहर में रह रहे हैं? ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली कहीं ब्रैकेट में या बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज जो है ना आगे की दो ग्रामर में और आपको सेम चीज मिलने वाली है, ठीक है। रूल यही रहना है। चलिए एग्जाम्पल मिटा करके थोड़ा सा आगे का एक दो चार एग्जाम्पल और देते हैं, बेहतर समझने के लिए इस चीज को। मेरा भाई 1 साल से जिम जा रहा है। 1 साल से जिम जा रहा है। मेरा भाई 1 साल से जिम जा रहा है। मेरा भाई माई ब्रदर माई ब्रदर हैज बीन, माई ब्रदर नेम ऑफ रिलेशन, नेम आ गया, ठीक है, हैज लगेगा। माई ब्रदर हैज बीन गोइंग, हैज बीन के बाद वर्क की आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू जिम। जिम की स्पेलिंग देख लीजिएगा। जिम जब बताए जे, जे से होना चाहिए। जिम फॉर 1 ईयर, फॉर क्यों लगना है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो वो आपका काउंटिंग ऑफ टाइम में आ जाएगा। वन ईयर। क्या मुन्ना 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या मुन्ना 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? मुन्ना नाम है, नाम के तो आगे हैज मुन्ना, हैज मुन्ना नॉट बीइंग, यहाँ पर हमने बोला था नॉट लगा देना, इसको आगे भी ले जाएंगे तो नॉट यही रह जाएगा, ठीक है। हैज मुन्ना नॉट बीइंग गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल कब से? 10 दिन से। 10 दिन कहाँ, इधर आएगा या उधर आएगा? 10 डेज।
फॉर 10 days। फॉर 10 days, ठीक है। हम 1950 से संविधान का पालन कर रहे हैं। 1950 से संविधान का पालन कर रहे हैं। कर रहे हैं। हम 1950 से संविधान का पालन कर रहे हैं। वी के साथ क्या लगेगा? हैव। वी हैव बीन, पालन करना, ओबे आज्ञा मानना, या फिर फॉलो, मानना, एक्सेप्ट करना। वी हैव बीन फॉलोइंग या एक्सेप्टिंग, क्या जो आप लगा सकते हैं। वी हैव बीन फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से, तो 1950 कहाँ पे आएगा? नेम ऑफ ईयर है, किसी पर्टिकुलर साल का नाम है, ये आपका सेम 1950। हम 1600 से आजादी मांग रहे हैं। हम 1600 से 1600 ईस्वी, यानी कि जब अंग्रेज आए थे, गुलामी में हम आए थे, तब से हम आजादी मांग रहे हैं। क्या हो जाएगा? वी हैव बीन बेगिंग, वी हैव बीन आस्किंग या बेगिंग, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। वी हैव बीन बेगिंग फॉर फ्रीडम सिंस 1930, ठीक है, सिंस 1930। माँ हमारा इंतजार कर रही हैं। मदर हैज बीन वेटिंग, सुबह से मदर हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, पिताजी 10 दिन से मुझे फोन कर रहे हैं। फादर हैज बीन कॉलिंग मी फॉर 10 days, ठीक है, टाइम 10 days, 5 days, 6 days, तो आपका इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए।